we'll hand it to you now, Vikram. What can I say? Thank you, Aisha and Meghna, but the man, Vikrant Massey. I'm normally not short for words, but seeing you sitting here with me, a little bit of goosebumps coming up, and the body of work that you've done, truly impressive. But, everybody's got one question on their mind. You've given a clarification that you're not retiring anytime soon. But what made you make that statement that you're taking a break? It sounded like a retirement plan, and then you came back with a clarification. क्या हो रहा था दिमाग में विक्रांत मैसी? क्या है जो आज आप खुलकर हमारे यहाँ ऑडियंस को और हमारे लाखों करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं उनको बताइए. सबसे पहले तो thank you so much. You are too generous. I would really want to thank the Times Network for inviting me here. It truly is an honor. And रहा जवाब आपके सवाल का. And as promised, हम खुल के बात करेंगे, हम दिल खोल के बात करेंगे. बिल्कुल. Frankly speaking. Frankly speaking, yes. The last few years have, as I mentioned in that post, have been truly phenomenal. I probably reflect upon the year gone by with utmost humility and gratitude कि जो चीजें मैंने शायद मांगी थी उससे कहीं ज्यादा मिला. I am an artist who's been working for the last 21 years professionally, but especially post 12th fail, it's really been remarkable. And I mean it when I say कि जो मांगा था ऊपर वाले से उससे कहीं ज्यादा मिला. So just to put things into context, I put out that post midnight because I was not able to sleep. क्योंकि अगले दिन the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, was going to watch my film. And the entire cabinet was going to watch my film, The Sabarmati Report. And I was on a call with my wife and we were chatting. And just to sort of briefly put it, मैंने सोचा ही नहीं था कि ये सब होगा जीवन में. 12th फेल कर ली, पूरे देश में लोगों ने उस फिल्म को इतना सराहा, मेरे काम को इतना सराहा. मेरा सपना था कि मुझे कभी फिल्म फेयर अवार्ड मिले, वो भी मिल गया. And pardon me, I might be sounding borderline pompous, but I'm trying to be as honest as I can. फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया. पिछले महीने श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठ के चर्चा करने का मौका मिल गया, वो भी एक सपना पूरा हो गया. एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलना ही बहुत बड़ी चीज होती है. 11 साल में उन्होंने एक फिल्म देखी है, वो है मेरी फिल्म. पूरा कैबिनेट वहां था. He gave his time, the entire cabinet gave its time. And the kind of love and reception the film got, I was truly overwhelmed by it, to be honest. So I was talking to my family, I was talking to my wife, and I said, ki yaar, and again I'm giving this disclaimer, please pardon me. We said कि यार इस देश में इससे ज्यादा और क्या ही कर सकता है कोई एज एन एक्टर. 12th फेल हो गई, सारी चीजें हो गई, अब साबरमती रिपोर्ट को भी लोग इतना प्यार दे रहे हैं. Physically also I'm kind of exhausted because I've been doing non-stop work. I nearly shot 284 days last year out of 365. तो क्रिएटिव सैचुरेशन भी कहीं ना कहीं एक आ गया था. And I personally felt that that was the right moment when the Honorable Prime Minister of my country is going to watch a film which is so close to my heart. अब यहां से तो बेहतर होना पड़ेगा. I have to better myself as an actor to be worth people's time, to be worth people's money. How will I do that?
is when I reflect at what the year gone by has been like and better myself as an actor. जब आप ये recognize करते हैं कि there is not much within you as a creative artist to offer, whether you're on a high or a low, the most basic thing one does is take a break, recalibrate and better themselves. तो मैंने भी वही करने की कोशिश की, पर दिक्कत ही हो गई कि मैंने कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी लिख दी उस पोस्ट में, बहुत लोगों को समझ नहीं आया. But yeah, I had to come out with a clarification the next day, and I still stand by it that for me to be in that chamber with him, with all the honorable dignitaries, and simultaneously the kind of love and adulation that the Sabarmati report has got has really sort of made me want to better myself as an actor. That was the primary reason. दिल पे कुछ तो बोझ होगा कि ये शब्द निकले, ये लफ्ज निकले, वो वर्ड्स निकले. नॉर्मली ऐसा नहीं होता. कुछ ना कुछ आपके जहन में होगा, क्योंकि yes, you got lot of accolades for the film before that 12th fail. लेकिन साबरमती रिपोर्ट आपको जितनी recognition मिली, और आपने खुद बताया कि प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं पूरे कैबिनेट के साथ, तो इससे ऊपर क्या जाएगा. लेकिन बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा भी, और आजकल विशियस हैं. ट्रोल्स या स्टेटमेंट्स बहुत विशियस होते हैं. उन्होंने इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कहा. उन्होंने कहा कि आजकल तो दो ही शब्द हैं, या आप लिबरल इकोसिस्टम से हैं या आप भक्त हैं. तो आप एक भक्त इकोसिस्टम से हैं और आपने यू टर्न मारा है अपना इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी से. इस तरह की बहुत सी चीजें भी कही गई. इनका इम्पैक्ट था जहन में? जाहिर सी बात है, especially when, as you said it so rightly, when most of the things, especially on social media, are so toxic, it does affect you. And I also sort of said the same thing, that my emotional health and my mental health did get impacted by it. They did take a hit. I am a sensitive person, and most people who know of me know this thing. They also know that I am actually not someone who's very comfortable in the media eye or in any form of social circle. इसलिए आप मुझे आमतौर पे उन सारी गैदरिंग्स में नहीं देखेंगे जहां पे an actor is supposed to be. फर्क पड़ता है उन चीजों का, but I very firmly stand by not a U-turn, but I would want to say I've evolved as a person. और ये बहुत बेसिक चीज है. I'm sure you're not the same person you were 10 years ago. Everyone changes. And I'm also hopeful that you will not be the same person 10 years henceforth, because we are all evolving with time. I had my share of it. और लोग कहते हैं, और कहने भी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. एक तरफा की बात हमेशा होनी नहीं चाहिए. But the kind of vitriolic comments, the kind of, you spoke about this thing on your channel, which I saw, and most people here know of certain things that were out there in the media. When my family got dragged in, when there were intimidating threats on social media, on my private mobile number, if you're not affected by it, there's something wrong with you. I concede to the fact that I was affected by it, but the post that I put out had nothing to do with the threats or with the vitriolic comments that were made on me. मैंने ये चीज भी समझी है over a period of time कि my reality could be your propaganda, but I will stand by my reality. अगर आप मेरी सच्चाई पे विश्वास नहीं करते हैं और अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं, मैं अपनी तरफ से अपनी कला के माध्यम से, या अगर मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं तो आपके साथ बैठ के बात करने की कोशिश करूंगा. लेकिन अगर तब भी आपके दिमाग में बात नहीं जा रही है तो गॉड ब्लेस यू. और रहा सवाल लेफ्ट और राइट का, यू सेड इट वेरी वेरी राइटली कि अनफॉर्चुनेटली
सिर्फ यही दो एक्सट्रीम्स आज एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली पब्लिक फोरम्स पे। और सिर्फ पब्लिक फोरम्स पे ही नहीं, कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि ड्राइंग रूम कॉन्वर्जेशंस हैव चेंज्ड, they've gotten borderline toxic. I have lost friends of 30 years because of our different political ideologies. हम बात करते हैं योग करके लाइफ में बैलेंस लाने की, हम बात करते हैं पिछले 10-12 सालों से ओपनली हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, इमोशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं, बैलेंस की बात कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट बैलेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स? There is absolutely zero balance of perspectives today. You're either here or you're there. I definitely do not subscribe to that. मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं. And I recognize the privilege that I have through the work that I do, through the stories that I say. I want to share my worldview with the world. बहुत सारे लोग हैं जो पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी करते हैं. Lastly, summing it up, it does affect you, but I'm not going to stop. I am going to go out there and stand by the stories and stand by the things that I believe to be true, with all sincerity and honesty. और रहा सवाल साबरमती रिपोर्ट का, तो I am extremely proud to be associated with this film. और कहीं ना कहीं मैंने ये जिद ठानी थी कि मुझे ये फिल्म इसीलिए करनी है क्योंकि 22 सालों में सिनेमा की दुनिया में किसी ने भी 27 फरवरी को जो हुआ या कोच S6 और 7 के साथ जो हुआ उस पर किसी ने बात नहीं की. 27 के बाद जो विभत्स हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था. Nobody is sort of justifying what happened post that. और ये हमने कहा है, हमने 50 बार कहा है, मैं दोबारा कह रहा हूं ये. बट nobody in the world of cinema, आप ऑनलाइन चले जाइए, आपको 15 फिल्में मिल जाएंगी वो अनफॉर्चुनेट राइट्स के ऊपर, आपको 50 डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, खास तौर पे विदेशी डॉक्यूमेंट्रीज कि हमारे देश में क्या हुआ था. लेकिन सिनेमा की दुनिया में कोच S6 और 7 के बारे में और 59 लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की थी. और जो मैंने फिल्म में कहा है वो मुझे वाकई लगा, ये 2 डायलॉग्स इनफैक्ट कहीं ना कहीं मैंने ही लिखे थे कि उस आग में बहुतों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उन 59 लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की. और वो 59 लोग मुझे, जब मैंने उनका रिसर्च मटेरियल पढ़ा या जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई, और स्क्रिप्ट से ज्यादा मोटा तो रिसर्च मटेरियल था मेरे पास, वो कहीं ना कहीं मुझे मेरे परिवार के ही लोग लगे. एंड लास्टली, आई एम अ यंग फादर टुडे, यू नो अबाउट इट. द यंगेस्ट पर्सन टू बी burned alive was a 2.5-year-old kid. And if you are going to sit with any lens, whether left or right or anything, whether you call it propaganda, and if you're going to talk about a 2.5-year-old kid burned alive with any specific lens, I mean, it's a horrible situation. Sometimes it's just truth that is important. It's just sensitivity to a child and telling the story of that child, that mother, that family, that is important. और हाँ, कई बार ये जब आपका अपना एक छोटा बच्चा हो तो यहाँ हिट करती है. मैं एक आर्टिस्ट के तौर पर आपकी बात समझती हूँ, एक माँ की तौर पर ये फीलिंग्स हमें रोज आती हैं. एक माँ के तौर पर हम जर्नलिस्ट हैं, हार्डन्ड हैं, हमने बहुत कुछ देखा है, सिनिकल हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें छू जाती हैं. लेकिन कल के दिन पोस्टर लगे, स्क्रीनिंग हुई साबरमती रिपोर्ट की यहाँ दिल्ली के JNU में. पत्थरबाजी हो गई. हमारे टाइम्स नाउ के रिपोर्टर को इधर से उधर जाते हुए पत्थर में से एक पत्थर लगा. उस पर डायरेक्टेड नहीं था, लेकिन लगा क्योंकि पत्थर चल रहे थे. क्या ये क्या दिखाता है, क्या सवाल खड़े करता है? ये कल मैंने खुद देखा, कवरेज देखी मैंने सारी चीज़ों की, और मैंने कुछ लोगों से संपर्क करके
जानकारी हासिल करने की कोशिश की. इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग. जैसे मैंने पहले कहा कि एक कहानी आप लेके आते हैं, और मेरा मानना है कि एक हेल्थी समाज में हेल्थी तरह से कॉन्वर्सेशन होनी बहुत जरूरी है. हम कहते तो हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, सबसे डाइवर्स हैं. अगर हैं तो हमें एक दूसरे को वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना जरूरी है. हमें एक दूसरे की बात भले ही हम माने नहीं, लेकिन एक दूसरे को अपना पक्ष रखने का, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए. यू माइट नॉट सब्सक्राइब टू वॉट आई बिलीव, बट इफ यू आर गोइंग टू स्टाइफल माई वॉइस, दैट इज रॉन्ग. कुछ बच्चों ने वहां फिल्म दिखाने की कोशिश की, आपको तो मुझसे ज्यादा पता है. पथराव हुआ, काफी तकलीफ हुई. जैसे मैंने कहा कि जानकारी हासिल करने की कोशिश की. ये नहीं होना चाहिए. अगर आपको फिल्म नहीं देखनी है तो मत देखिए. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखना चाहते हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि वाकई 22 साल पहले क्या हुआ था. उनको देखने दीजिए. लेकिन अगर आप किसी भी तरह की हिंसा करते हैं, वायलेंस करते हैं, तो दैट इज रियली अनफॉर्चुनेट. एंड दे आर स्टूडेंट्स. वो सारे बच्चे, वो चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, वो चाहे किसी भी आइडियोलॉजी से हो, वो फ्यूचर है हमारे देश का. जब वो ये सारी चीजें करते हैं तो तकलीफ होती है. मैं और क्या ही कह सकता हूं. इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग. आई मीन, I really have nothing more to say because it is disturbing. But in very plain Jane language, all I want to say is that if you do not want to watch the film, don't watch it. Nobody is forcing you to watch it. But there are a lot of other people who want to watch it. Let them do what they feel is right. और अगर चर्चा करनी है तो चर्चा करिए, हेल्थीली करिए. हिंसा करने का क्या मतलब है? लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं है, फिल्म देखने गए हैं, फिल्म की कलेक्शंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि इट विल बी अ हिट, लोगों ने नहीं पसंद की. क्या फिल्म की सक्सेस इन द कलेक्शंस जो उसको मिलते हैं, वो किसी आर्टिस्ट का, किसी एक्टर का कन्विक्शन चेंज करता है कि अरे सक्सेस नहीं मिली, शायद मैंने गलत फिल्म पकड़ी? See, to each their own, and I know there are very different kinds of actors and actresses and people who make films. मैं एक छोटा करेक्शन ये करना चाहूंगा कि साबरमती इज अ हिट. अगर आप इन्वेस्टमेंट, सीओपी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें और आरओआई की बात करें, सो इट इज अ सर्टिफाइड हिट. अगर पर्सनली आप मुझसे पूछें कि 200 करोड़ की फिल्म बना के 250 करोड़ रुपए कमाना फॉर मी इज बैड बिजनेस. पर अगर मैंने 15 करोड़ की फिल्म बनाई और उसने 40 करोड़ बनाए तो वो मेरे लिए इज गुड बिजनेस. एंड आई एम वर्किंग विद लाइक माइंडेड पीपल. कमिंग बैक टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू रेज्ड इज बॉक्स ऑफिस सक्सेस the only barometer to gauge whether you've been successful or not? Not in my case, and I can only speak for myself. क्योंकि मैं उस दुनिया से आता हूं जहां पे मैं टेलीविजन में एक शो करता था, बालिका वधू. वो शो भारत के इतिहास में, आई वेरी प्राउडली से, इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल शोज एवर मेड. वो सिर्फ टीआरपी भी मिली उसे, पर उसका जो सोशल इम्पैक्ट था, जो कला है, जो आर्ट है, कहीं ना कहीं हम उसका बेसिक एसेंस भूलते जा रहे हैं. आज आपकी ओपनिंग कितनी रही, और होना भी चाहिए क्योंकि बिजनेस है और बहुत पैसा लगता है लोगों का. मैं उस पेडिग्री का नहीं हूं कि मेरी ओपनिंग कितनी लगी या मेरी फिल्म किसी पर्टिकुलर क्लब में गई या नहीं गई. मेरे लिए मेरी कहानियों का आर्काइवल वैल्यू होना ज्यादा जरूरी है. क्योंकि आप कोई भी आर्ट फॉर्म अगर उठाएं, चाहे वो पेंटिंग हो, गाने हो, या कोई किताब हो, या पोइट्री हो, इट हैज टू आउटलिव यू. एंड आई एस्पायर टू डू दैट थ्रू द वर्क आई डू. एक छोटा उदाहरण मैं शेयर करना चाहूंगा. जब मेरे घर पे केबल पे, टीवी पे फिल्म आती है तो मेरे फादर आज भी बैठ के गाइड देखते हैं, वक्त देखते हैं, 2 बिघा जमीन देखते हैं, मदर इंडिया देखते हैं. वो क्यों देखते हैं? क्योंकि आज भी वो फिल्में रेलेवेंट हैं.
आज भी वो कहानियां जो हैं उनके दिल को छूती है, वो तो थिएटर में नहीं लगी हैं। उसी तरह से मेरा ये सपना है कि अगर हम 12th फेल की बात करें, 12th फेल 8 महीने थिएटरों में चली, वो किसी 100 करोड़ क्लब का हिस्सा नहीं थी, पर आज की तारीख में आई कैन वेरी प्राउडली से कि 8 महीने कोई फिल्म 2000 के बाद नहीं चली है सिनेमा में। ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। भारत के सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही नहीं, मैं मुंबई शहर का रहने वाला हूं, वहां पे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है सिनेमा से, पर क्योंकि ये कहानी ऐसी थी कि वो प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स ने एक दिन निकाला उन बच्चों को सिनेमा घर ले जाके 12th फेल दिखाने का। ये मेरे लिए जीत है। So these are things that matter to me. For me, what's more imperative is for my stories and for my films to have a certain sense of an archival value. पैसा अगर आता है तो अच्छी बात है, आना भी चाहिए, पर अगर नहीं आता और अगर मेरी कहानियां लोगों तक पहुंचती है या अगर उनको इंस्पायर भी करती है, अगर 100 में से 2 लोग भी इंस्पायर होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी जीत है। एंड दैट इज व्हाट आई एस्पायर टू अचीव। Very well said. At a time when commercial success, money is so important, कोई ये बात कर रहा है कि आर्ट फॉर्म impact, social impact, और 12th fail clearly pressure on kids to perform, to deliver, उस थीम का वाकई बहुत रेलेवेंस है आज सोसाइटी में, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, जगहें कम हैं इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, और ये जद्दोजहद हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की है कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए। लेकिन सॉरी टू कट यू, बट यू नो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट यूपीएससी 12th फेल की अगर हम बात करें, इट वाज अबाउट हाउ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू योर सोसाइटी और योर कंट्री। वो देश प्रेम का जो, राष्ट्र प्रेम का जो भाव है, वो रियल लाइफ मनोज कुमार शर्मा जो आज की तारीख में सीआईएसएफ के आईजी साहब हैं, उनमें बहुत भयंकर है। वो अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में देश की सेवा करना चाहते हैं। तो सिर्फ यूपीएससी क्लियर करके एक अच्छी पोजीशन पे बैठने वाली बात नहीं थी, कहीं ना कहीं इट इज एन इंडिया स्टोरी। शायद इसीलिए लोगों को वो फिल्म इतनी पसंद आई। और मैम, लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा, जब इस फिल्म की तैयारी के लिए मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में था, जितने भी वहां पे एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स हैं, उन बच्चों से मैंने बात की है। मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं, मैंने उनके साथ 20-21 दिन बिताए हैं। अगर आंकड़ों में ही अगर मुझे उसको रखना है तो लगभग 80 से 85% बच्चों को सिविल सर्विस इसीलिए करनी है क्योंकि वो देश से अपने प्यार करते हैं और वो वाकई देश में, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। 80 to 85% of aspiring civil servants, and these are kids who come from really challenged socio-economic backgrounds. और हिंदी के लिए तो मैं हमेशा बात करता ही आया हूं, चाहे वो साबरमती रिपोर्ट हो या बालिका वधू हो या 12th फेल हो, कि हमारे यहाँ पे आज भी जो हमारे भाषाई लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारा कॉलोनियल हैंगओवर अभी भी है। आप इंग्लिश स्पीकिंग है कि नहीं है, आप कितने योग्य हैं, वो आपकी अंग्रेजी से, आपके पहनावे से, आपके जूते के पॉलिश से तय किया जाता है। वो नहीं होना चाहिए। जो 12th फेल में कहा था, लास्टली मैं वही कहूंगा कि जब वो इंटरव्यू में बैठता है तो कहता है कि नहीं मैम, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है, मुझे स्टील का ग्लास मिलेगा। तो वो कहता है कि पानी साफ है ना, तो वो कहता है मैं भी तो वही कह रहा हूं सर, पानी साफ होना चाहिए, फिर ग्लास चाहे कोई भी हो। तो हमें लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। और आज जो प्रिविलेज मेरे पास है, एंड आई गो बैक टू द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट आई मेड, आई एम सो ग्रेटफुल टू दोज ऑडियंसेस and the writers, producers and everyone who's been a part of my journey, कि आज इस मंच पे बैठना मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था, पर मैं आज यहाँ हूं। और अब लोग सपने देखते हैं कि आपके साथ मंच पे बैठे। I don't know. Thank you. तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। या जीरो से रीस्टार्ट, फिलॉसफी ऑफ लाइफ डॉक्यूमेंट्री, मतलब स्मॉल टाउन पीपल, वो अपने सपने लेकर निकलते हैं। कभी सोचा था कि यहां तक पहुंचेंगे, कैसे किया, मुश्किलें आई, क्या है?
अब जब पीछे मुड़ के देखता हूं मैम, तो सच बताऊं मुश्किलें एक्चुअली याद नहीं है अब, क्योंकि आई स्टैंड ट्रू टू व्हाट आई सेड, लाइफ इज गिवन मी मच मोर देन व्हाट आई आस्क्ड फॉर. आई कम फ्रॉम अ वेरी रेगुलर न्यूक्लियर मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम मुंबई, जहां पे हमारे आसपास के जितने भी बच्चे थे 10+2 करके मर्चेंट नेवी में जा रहे थे या फ्लाइट स्टूवर्ड्स बन रहे थे. तो ऐसा लगता था कि यार महीने का ₹1,00,000 कमाएंगे तो पेरेंट्स की नजरों में सक्सेसफुल होंगे और मेरे ख्याल से एक गाड़ी ले लेंगे, एक EMI पे घर ले लेंगे. वो मेरा एक बैरोमीटर था सक्सेस का. आज मैं जहां बैठा हूं, मैं सच में गदगद हूं कि मुझे वो करने का मौका मिल रहा है जो मेरा बचपन से सपना था, अभिनय करने का. उन लोगों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है जिनका मैं फैन हूं. उन कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, राइटरों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जिनके साथ सोचा था कि यार जिंदगी में एक बार करेंगे कभी काम. तो जब ये सारी चीजें आपके साथ होती है तो वो स्ट्रगल नहीं लगता. तब ऐसा लगता है कि यार वो जरूरी था शायद. और मुझे मैम जेन्युइनली अपने स्ट्रगल्स को ग्लोरीफाई करना थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि सच कहूं तो मैं मुंबई का रहने वाला हूं. अभिनय की दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने घरों को छोड़ के, अपने परिवारों को छोड़ के, अपने खेतों को, अपनी कोठियों को छोड़ के आते हैं. मेरे पास कम से कम बाय द एंड ऑफ द डे मेरे माँ के हाथ की गर्म रोटी थी. वो जो लोग हैं अपना घर बार छोड़ के आते हैं, 6 लोग एक कमरे में सोते हैं, 300 रुपये महीने का टिफिन का डब्बा ऑर्डर करते थे. वो मेरे दोस्तों की बात कर रहा हूं मैं, 2003-4 की बात कर रहा हूं. एक 1 बेडरूम फ्लैट होता था 450-550 स्क्वायर फीट का, उसमें अपनी कोठियां छोड़ के आए, 6 एकड़ की जमीन छोड़ के आए हुए हैं, क्योंकि भूत सवार है एक्टर बनने का या डायरेक्टर बनने का, राइटर बनने का. और उस 400-500 स्क्वायर फीट के घर में वो 6 लोग गद्दा बिछा के सो रहे हैं. वो 300 रुपए का डब्बा मंगा के खा रहे हैं, जिसमें उनको हफ्ते में 2 दिन चिकन मिलता था, लेकिन चिकन कम तेल ज्यादा होता था. तो उनके सामने मेरा स्ट्रगल कुछ नहीं है. तो स्ट्रगल अगर रहा भी तो वो दूसरों के मुकाबले एक्चुअली कुछ नहीं है. तो इसीलिए मैं ज्यादा बात ही नहीं करता अपने स्ट्रगल्स के बारे में. एक्सेप्टेबिलिटी सक्सेस के बाद आती है फिल्म इंडस्ट्री में, या इट इज टू इम्पर्सनल. कैसी है ये फिल्म इंडस्ट्री? एक चीज तो मैं कहूंगा आपके मंच से कि यार जितनी बदनाम हमारी इंडस्ट्री है उतनी बुरी है नहीं, सच में. ये सक्सेस मिलने के बाद कह रहे हैं? पहले भी ऐसा कहते हैं? मैं पहले भी यही कहता था. हाल ही में आपने सुना होगा आउटसाइडर इनसाइडर. हाल ही में नहीं, ये बहुत पुरानी बात हो गई अब तो. नेपोटिज्म, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर, ये सब बकवास है. मेरा ये बहुत फर्म बिलीफ है. और सबसे पहले तो बिफोर आई say this thing, it is one of the most multicultural, it is one of the most democratic communities or institutions or an industry, whatever you want to call it, in this country. आप कहां से आते हैं कुछ मैटर नहीं करता. आपके पास जेब में कितना पैसा है नहीं मैटर करता. आप अंग्रेजी बोल लेते हैं या कितनी भाषाएं बोल लेते हैं वो भी मैटर नहीं करता. सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि आपको जिस चीज के लिए हायर किया गया है आप उसमें कितने सक्षम और कितने अच्छे हैं. और उसका लिविंग एग्जांपल मैं हूं. मैंने 10 साल टीवी किया है मैडम. और जब मैंने फिल्मों में शुरुआत की थी तो बहुत लोगों ने कहा था कि टीवी एक्टरों का यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, तुम ज्यादा से ज्यादा हीरो के दोस्त बन के रह जाओगे. मुझे वो चीज इतनी चुभी, मैंने कहा कि ठीक है मैं 10 साल बाद तुमसे दोबारा बात करूंगा. और आज चीजें अलग हैं. मुझे दोबारा बताया किसी को ये कि देख भाई? नहीं, वो लोग अब बुलाते हैं काम करने के लिए, वही लोग बुलाते हैं. तो आई मीन सच थोड़ा सीना चौड़ा करके जाते हैं वहां पे. नहीं मैम, इनफैक्ट रादर देन दैट ना मेरे साथ उल्टा होता है. यू नो, अभी जैसे पहले ही अगर हम सवाल पे जाएं, व्हाई डू आई वांट टू टेक अ ब्रेक एंड रिकैलिब्रेट व्हेन पीपल आर सेइंग कि यू हिट योर पीक राइट नाउ व्हेन यू वांट टू रिकैलिब्रेट. मैं थोड़ा शायद उल्टा चलता हूं. अगर ये सारी चीजें होती हैं तो मेरी नजरें और नीची हो जाती हैं. बिकॉज वन थिंग आई नो फॉर अ फैक्ट,
that everything in life is very transient, nothing is permanent. The ultimate truth. ये अल्टीमेट ट्रूथ है. तो अहंकार को जितना दूर रखूं उतना मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि मेरे से पहले भी बहुत आए, मेरे बाद भी बहुत आएंगे. अगर वो ये गलती करेंगे तो उनका भी वही हश्र होगा जो पहले हुआ है लोगों का. तो अहंकार नहीं होना चाहिए. अकेले अपने कमरे में बैठ के ऐसे घर वालों से बात करते हैं कभी कभी कि आपको पता है जिसने 4 घंटा मुझे वेट करवाया था 5 साल पहले, आज उसका फोन आया, तो हम लोग को बड़ा मजा आता है. लेकिन बस वो उस कमरे तक ही सीमित रहती है बात. लेकिन फिर वो बुलाते हैं तो मिलने भी जाते हैं, इतना मान जरूर देते हैं. तो ये सारी लाइफ है मैम. लाइफ का जो बेसिक नेचर है ना, वो हमसे पहले भी वैसे ही रहा है, आगे भी वैसे ही रहेगा. उसको जितनी जल्दी हम समझने की कोशिश करेंगे उतना हम सबके लिए बेहतर रहेगा. बस और क्या ही कहूँ मैम. ये मतलब ऐसे कोई सेल्फ हेल्प बुक वाली बातें चल रही हैं ऐसा लग रहा है. नहीं, सेल्फ हेल्प आजकल कोई ऐसी किताबें निकालता नहीं है, क्योंकि एवरीबडी हैज टू फाइंड देयर ओन पाथ to success. But acceptability was the word, and I think it is something that all of us need to ponder on. हम अपने फोन्स के सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं. जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है बोलते हैं अरे यार अपडेट करना है. हम अपने आप को ही अपडेट नहीं करना चाहते हैं. गाड़ियां अपडेट कर लेते हैं. गाड़ियों की सर्विसिंग साल में 1-2 बार होती है. खुद की भी सर्विसिंग करना जरूरी है. One has to adapt with time, and some of the greatest thinkers in this world again before us have said it, one has to adapt with time. और अगर वाकई अडेप्ट करना है तो एक्सेप्टेंस होनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा. मिली कि नहीं एक्सेप्टेंस? मिली है, और जैसे मैंने कहा कि शायद जितना मांगा था उससे कहीं ज्यादा मिली है, इसलिए गदगद हूं. बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो आउट देयर एंड रिप्रेजेंट द कॉमन मैन. आई एम जस्ट 37. आई हैव, विच इज वाई एवरीबडी इज आस्किंग, ऐसा कौन सा रिकैलिब्रेशन अपडेशन की जरूरत पड़ गई एट 37? नहीं मैम, जरूरी इसीलिए है, जैसे मैंने कहा कि सारी चीजें ट्रांजिएंट हैं. आई एम अ यंग फादर नाउ. I haven't been able so to. somewhere it's impacted you. The threats to your child, you feel like spending more time with family. Spending more time with family. और threats के लिए थोड़ा insecure करते हैं जब ये threats वगैरह आते हैं कि ये मेरी दुनिया असल में यही है, यहाँ मैं grounded हूँ, बाकी आई गई बात है, आज है कल नहीं है. Ma'am, I have always believed in one thing, that my professional identity is not my identity. मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं हूँ. मैं अभिनय करना पसंद करता हूँ. मैं लोगों की कहानियाँ सिनेमा के माध्यम से उन तक पहुँचाना चाहता हूँ, पर सिर्फ वही मेरी आइडेंटिटी नहीं है. और उस पोस्ट में भी मैंने बहुत ही साफ साफ कहा था कि इट्स टाइम टू रिकैलिब्रेट, गो बैक होम एज अ हस्बैंड, सन एंड अ फादर. All of us are playing multiple roles in life. At this point in time, as I said, sitting in that screening room with the Honorable Prime Minister of my country is probably the highest point in my career. How do I better myself? I better myself by recalibrating, by probably traveling, by meeting new people, by reading a little more, by probably tweaking or updating my own worldview with time, and come back with a story which really wants or warrants my time and attention. And साल 2 साल में आएंगे, वापस करेंगे कुछ अच्छी. साल 2 साल लंबा टाइम होता है, लोग भूल जाते हैं. इनसिक्योरिटीज होती हैं, आपको नहीं है? I don't know. I mean, I have not thought on these lines. Naturally, मेरा दिमाग वहां नहीं जाता है. There is one film that I am doing next year, and my entire focus is on that film. Which you are directing also? No, वो मैम सारी बातें आप सबके सामने कर लेते हो, मैं जो अकेले बताता हूँ आपको. So ये है कुछ हाँ, मन में चल रहा है. I want to direct, I want to produce, but I think it's too early to be talking about that publicly. There is one film as an actor that I am doing next year, which is by the end of next year. My entire focus is on that film. My entire focus is on watching my wonderful son grow, to take that necessary break, to write more, to look after my health a little more. कुछ प्रॉब्लम है जब एक्टर्स ऐसे कहते हैं तो काम वैसे ही आना बंद हो जाता है कि मैं हेल्थ को तवज्जो देना चाहता हूँ. कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हेल्थ कुड बी बेटर.
You know, I haven't slept for more than 4-5 hours in I don't know how many years. So I want to do that. बस बहुत ही जेनेरिक सिंपल सा रिकैलिब्रेट करना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. द लार्जर आइडिया रिमेन्स टू बेटर माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट. आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर फर्स्टली. तो ऐसा नहीं है कि कोई मेथड उसके है. बाद आप इतना कहर ढा रहे हो. ट्रेन्ड एक्टर होते तो क्या करते पता नहीं. शायद स्पॉन्टेनिटी ज्यादा होती है अनट्रेन्ड में. नहीं, मैं खुश हूं मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूं, टू बी मेथड ऑनेस्ट. एक्टिंग नहीं है. हाँ, मतलब मेथड कह भी सकते हैं, बट आई थिंक माई ऑब्जर्वेशंस एंड माई जर्नलिंग स्किल्स, जो मैं जर्नल करता हूँ आमतौर पे रोजमर्रा के जीवन में, वो मुझे बहुत हेल्प करता है टू गो आउट देयर एंड रिप्रेजेंट दोज कॉमन पीपल आई वांट. So, जो आता है दिल से आता है. Yeah, probably. It could be an amalgamation of my observation skills. It could be something that I journaled or probably blanked out or forgot years ago. Reading a new book, striking an incredible conversation with a complete stranger. ये सारी चीजें मेरे लिए ज्यादा मायने रखती हैं. तो coming back to the thing that I was saying कि I'm not a trained actor. I don't have a specific method to go back to. इसीलिए वो थोड़ा ट्रैवल करना, थोड़ा नए लोगों से मिलना, थोड़ा सा खुद के विचारों को पन्नों पे उतारना एज एन एक्टर बहुत जरूरी है. तो अब राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, बहुत से रोल्स एक्सप्लोर करने की स्टेज में चाह है. बिल्कुल है, बिल्कुल है. एक और चीज आपके बारे में मुझे बहुत अच्छी लगी. नॉट जस्ट, एंड आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट जो झंडा उठा के चलते हैं, पर एक तस्वीर आपकी अपनी वाइफ के साथ देखी, आप उनके पैर छू रहे हैं. अ लॉट ऑफ पीपल वुड से एक्टर है, स्टंट होगा, बट व्हाट मेक्स यू डू दैट, एंड what is it that goes on in your mind when you look at your relationship with your spouse? I think I'm incredibly lucky to have Sheetal as my wife. We've been together for almost a decade. Married for 3 years now. पर तकलीफ होती है मैम, जब हर चीज पे आप पे सवाल उठाया जाए, आपकी फिल्म के चॉइसेस पे, आपके एक पर्टिकुलर जेस्चर पे, या आपके वर्ल्ड व्यू पे, हर चीज पे अगर सवाल उठाते हैं लोग, और सवाल उठाना ही नहीं जबकि आपको मतलब इट्स टॉक्सिक, तो तकलीफ होती है. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सोचिए कि मैंने वो पहली बार पब्लिक में डाला, पर ये तो मैं सालों से कर रहा हूं. करवा चौथ पे कोशिश ये रहती है, और बहुत से लोग अर्बन सेंटर्स में खासतौर पे इस चीज को फॉलो भी करते हैं, मेरे घर में करते हैं लोग, कि जब करवा चौथ पे वाइफ व्रत रखती है तो हस्बैंड भी रखते हैं. बहुत से अर्बन सेंटर्स में लोग रखते हैं. जब पत्नी पैर छूती है तो पति भी पैर छूता है. और मैं कर रहा हूं 3 साल से, जब से मेरी शादी हुई है. मैंने तो मंडप पे छुए थे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो वाकई मेरे जीवन में लक्ष्मी है. जब से वो मेरे जीवन में आई है तब से मेरा बहुत अच्छा हुआ है, और वो मान सम्मान जो वो मुझे दे रही है, मैं उनको वापस क्यों नहीं दे सकता. लेकिन उस पे भी थैंक यू. I wish more men thought like you, more husbands नहीं, thought. बहुत हैं, करते हैं. मेरा ये कि बस मैंने पोस्ट डाल दिया तो तारीफ भी हुई, पर गाली भी बहुत खाई. आजकल वो that comes as a package deal. पैकेज डील है, वो होता है. पर बहुत लोग हैं जो करते हैं, मेरे दोस्त यार करते हैं. आप घर में अब are you a normal kind of guy? कभी खाना भी बना लिया, कभी घर के काम कर दिए, डायपर्स बदल दिए. हाँ, yeah. And I'm very good at that. And that is what I'm craving for right now. Because my son started saying Papa in my absence. उसके दांत आ गए in my absence. And as they all said before I had one, मेरे को लगता था क्या बोलते हैं यार, ये सभी एक ही चीज बोलते हैं, they grow up so fast. It is true. They actually grow up too fast. And now he is attempting to walk. And I'm like, यार मेरी उंगली पकड़ के नहीं चलेगा तो फिर तो मतलब क्या ही करेंगे इस पैसे का या नाम का, इन सारी चीजों का. I want to spend that time with him. I completely identify with what you are saying. In the end, just want to ask you one thing. प्रधानमंत्री ने आपसे क्या शब्द कहे?
काफी चर्चा हुई उस चेम्बर में, जो अधिकतर बातें हुई हैं उनको वहीं रखें तो बेहतर है, पर उनको फिल्म अच्छी लगी, उनको हमारा प्रयास अच्छा लगा। लास्टली इतना कहना चाहूंगा कि जितना मैं उस एक रात स्क्रीनिंग के एक रात पहले भावुक था, शायद वो भी उस स्क्रीनिंग पे उतने ही भावुक थे, उनकी आंखें नम देखी। तो शायद इस बात से तसल्ली हुई कि एक सही प्रयास था हमारा, जो 22 साल पहले घटना घटी थी, उसको लोगों तक लाने में हमारा प्रयास ठीक था। एंड या Something that you will keep in your heart forever, जो उन्होंने कहा। उनको मेरा काम अच्छा लगा, यू नो, ही सेड कि उनको मेरा काम अच्छा लगा है। और आई मीन it's a compliment that is going to stay with me for the rest of my life. Things that I probably will tell my grandchildren, that the then Honorable Prime Minister of our country knows me by my name, has seen my movie, the only film that he's seen in his tenure as the Honorable Prime Minister, and he thinks I'm a good actor. I mean, it's a compliment that is going to stay with me till my last breath. And what did your parents say? मेरे घर में दावत चल रही थी जब यहाँ पे स्क्रीनिंग चल रही थी। मेरे पेरेंट्स ने अपने आस पड़ोस के जितने भी लोग, उनके जान पहचान के लोग हैं, उन सबको घर बुलाया, क्योंकि साथ ही साथ में न्यूज़ पे आजकल आप लोग भी लाइव ही करते हैं सब कुछ, तो न्यूज़ में वो देख रहे थे जब स्क्रीनिंग चल रही थी, तो दावत रखी थी उन्होंने घर पे। सो ऑल द नेबर्स वर देयर, एवरीवन वाज देयर, दे वर हैविंग अ गाला टाइम, दे वर हैविंग अ हम सराउंड साउंड वाला सिस्टम है ना, क्योंकि अंदर आप थे, अंदर जो चल रहा है वो आप बता नहीं रहे, तो हम फिर बाकी बाहर वालों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। एंड थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दैट। Well, Vikrant Massey, what can I say? Human being par excellence, sensitivity par excellence, body of work par excellence, and we just hope and wish कि ज़मीन हमेशा, पाँव हमेशा आपके ज़मीन पर रहें, जिस तरह आज आप हैं, सबके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, बस सक्सेस मिलता रहे, लेकिन दिल के तार आम आदमी से जुड़े रहें, यही आपके लिए दुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। Thank you very much, and really honored to have you on this platform. Thank you. We certainly hope you're back after that break soon. Thank you.